Hello students, good morning. I am GK Sinha, the teacher of English. Today I am going to teach the students of class 6 the third chapter of their literature book, and the title of this story is Saviors of the Train. It is a very beautiful story of three siblings who saved a train from a major accident. So first I will read this story in Hindi and then I will tell you the Hindi of this story. The children were almost at the little swing gate at the top of the flight of steps when Bobby said, "Hush, stop. What is that?" That was a very odd noise. Indeed, a soft noise, but quite plainly to be heard through the sound of the wind in the tree branches. It was a sort of rustling, whispering sound. As they listened, it stopped and then it began again. तो ये कहानी तीन छोटे छोटे बच्चों की है जो आपस में भाई बहन थे। ये बच्चे एक दिन चेरी चुनने के लिए बाहर घर से निकलने ही वाले थे कि उन्होंने अपने आप को एक लकड़ी के फाटक के पास पाया जो रेलवे लाइन की ओर जा रही थी। और जब वहाँ पर वो पहुँचे तो उन लोगों ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, गड़गड़ाहट की। तो उनकी जो सबसे बड़ी बहन थी तीनों में, उसने कहा कि चुप रहो, सुनो वो कौन सी आवाज़ आ रही है, कैसी आवाज़ आ रही है। तो वो जो आवाज़ आ रही थी वो एक विचित्र सी गड़गड़ाहट की आवाज़ थी जो पत्तों के पेड़ों के बीच से सरसराहट की वजह से बहुत हल्की आवाज़ नज़र आ रही थी, जो गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ थी। And this time it didn't stop, but it grew louder and there was more rustling and rumbling. "Look," cried Peter suddenly, "the tree over there." The tree he pointed at was one of those that have rough grey leaves and white flowers, and as Peter pointed, the tree was moving, not just the way trees ought to move when the wind blows through them, but all in one piece, as though it were a live creature and were walking down the side of the cutting. "It was moving," cried Bobby. "Oh, look, and so are the others. It's magic," said Phillips breathlessly. "I always knew this railway was enchanted." It really did seem a little like magic, for all the trees for about 20 yards of the opposite bank seemed to be. तो बच्चे जो थे वहाँ वो देखे कि जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है उस दिशा में देखने पर उन्हें लगा कि जो ऊपर पेड़ सब थे वो एक सजीव प्राणी की तरह चल रहे थे, और एक जो भूरे रंग के पत्तियों वाला पेड़ था जिसमें सफ़ेद फूल थे वो सबके पीछे चल रहा था। तो वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वो चल रहे हों, जिस तरह से आमतौर पे हवा चलने पर पेड़ झूलते हैं, वैसा नहीं था। वो एक सजीव प्राणी की तरह चलते हुए महसूस हो रहे थे। तो जो फिलिस थी सबसे छोटी बहन, उसने कहा कि ये रेलवे लाइन जादुओं से भरी हुई है, इसलिए हम लोग को यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हम लोग को घर चलना चाहिए। Slowly walking down towards the railway line, the tree with grey leaves bringing up the rear like some odd shepherd driving a flock of green sheep. और जो सबसे पीछे वाला ग्रे लिप्स वाला पौधा पेड़ था वो इस तरह प्रतीत हो रहा था मानो वो जिस तरह भेड़ को चराते हुए चरवाहे जो होते हैं, गडेरिया, भेड़ों को चराते हुए पीछे पीछे चलता है, उस तरह से वो पेड़ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो पेड़ों को हाँक कर ले जा रहा हो।
What is it? Oh, what is it? Said Phyllis. It's much too magic for me. I don't like it. Let us go home. तो जो फिलिस थे उसने कहा कि अरे ये तो एक जादू की तरह लग रहा है, मैं इसे पसंद नहीं करती, चलो हम लोग घर चलें. But Bobby and Peter clung fast to the rail and watched breathlessly, and Phyllis made no movement towards going home by herself. तो बॉबी और पीटर जो थे वो जल्दी से रेलवे लाइन की ओर बढ़े और सांस रोककर उसे देखने लगे, लेकिन फिलिप्स जो थी वो अकेले घर जाने का कोई प्रयास नहीं की. The trees moved on and on. Some stones and loose earth fell down and rattled on the railway metals far below. अब ये पेड़ जो है वो बढ़ते रहे और कुछ पत्थर और मिट्टी जो है रेलवे लाइन पर आवाज़ के साथ गिरने लगी. It is all coming down, Peter tried to say, but he found there was hardly any voice to say it with, and indeed, just as he spoke, the great rock on the top of which the walking trees were leaned down forward. The trees, ceasing to walk, stood still and shivered, leaning with the rock. They seemed to hesitate a moment, and then rock and trees and grass and bushes with a rushing sound slipped right away from the face of the cutting and fell on the line with a blundering crash that could have been heard half a mile. A cloud of dust rose up. तो वो सारे जो पेड़ चल रहे थे, पीटर ने कहना चाहा कि वो सारे पेड़ नीचे आ रहे हैं, लेकिन उसने पाया कि उसकी आवाज़ शायद ही कोई सुन रहा है, और जो बड़े बड़े चट्टान थे ऊपर वो पेड़ों के साथ जो जिस पर पेड़ चल रहे थे वो सब काफ़ी तेज आवाज़ के साथ रेलवे लाइन पर आकर गिरे और एक काफ़ी तेज आवाज़ हुई और धूल गर्द का एक गुब्बार सा ऊपर उठा. Oh, said Peter in awestruck tones, isn't it exactly like when coals come in if there wasn't any roof to the cellar and you could see down? तो पीटर ने कहा कि अरे, बहुत भयभीत आवाज़ में, आश्चर्यचकित आवाज़ में उसने कहा कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि मानो किसी भंडार घर में ऊपर से जिसमें छत नहीं हो और आवाज़ के साथ कोयला गिरता है, उस तरह का नज़ारा था. Look what a great mound it has made, said Bobby. तो बॉबी ने कहा कि देखो इसने कितना ढेर सारा पहाड़ जैसा इस रेलवे लाइन पे बना दिया है. Yes, said Peter slowly. He was still leaning on the fence. Yes, he said again, still more slowly. Then he stood upright. The 11:29 down has not gone by yet. We must let them know at the station or there will be a most frightful accident. तो अचानक जो है पीटर को ध्यान आया कि 11:29 में जो डाउन ट्रेन जाती है इस रेलवे ट्रैक से, उसके आने का समय हो गया है, इसलिए हम लोगों को तुरंत स्टेशन पर खबर करनी चाहिए, नहीं तो एक भयानक दुर्घटना घट जाएगी. चूँकि रेलवे ट्रैक पे तो पूरे पहाड़ से जो है सब ढेर सारे पेड़ पौधे चट्टानें मिट्टी आकर गिर के पहाड़ जैसा बना दिया था. तो बच्चों ने यही सोचा कि इस बात की सूचना जल्द से जल्द स्टेशन को दी जानी चाहिए. तो बॉबी ने कहा कि चलो हम लोग दौड़ के वहाँ स्टेशन पे खबर करते हैं, और दौड़ना शुरू की. लेकिन पीटर चिल्लाया, वापस आओ, एंड लुक्ड एट मदर्स वॉच. ही वॉज वेरी प्रॉम्प्ट एंड business-like, and his face looked whiter than they had ever seen. तो पीटर चिल्लाया कि वापस आओ, माँ की घड़ी को देखो. वह बहुत ही
तत्पर बच्चा था और काफ़ी समझदार भी था, इसलिए उसने कहा कि अगर हम लोग दौड़ के स्टेशन जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। तो फिर उसने आगे कहा कि एनीवे लेट अस गेट डाउन। दे गॉट डाउन द स्टीप स्टेयर्स। बॉबी वॉज पेल एंड शिवरिंग। पीटर्स फेस looked thinner than usual. Phyllis was red-faced and damn with anxiety. तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरे। बॉबी का चेहरा पीला पड़ गया था, वो कांप रही थी। पीटर भी काफ़ी घबराया हुआ नज़र आ रहा था और फिलिस जो सबसे छोटी थी वो उसका भी चेहरा लाल हो गया था और वो घबराहट से पसीने पसीने हो गए थे। Oh, how hot I am, she said, and I thought it was going to be cold. अरे देखो मैं कितनी गर्म महसूस कर रही हूँ और मैं सोचती थी कि ठंड होने जा रही है। I wish we hadn't put on our. She stopped short and then said in quite a different tone, our woolen scarves. फिर वो कहती है थोड़ी देर चुप रह के कि हम लोगों का जो वुलन स्कार्फ्स है वो लाल कलर का है, उससे हम लोग इस ट्रेन को रोकने का काम कर सकते हैं। तो बॉबी टर्न एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। तो बॉबी जो है सीढ़ियों के नीचे से वापस घूमी और बोली, ओह यस, शी क्राइड, दे आर रेड, लेट अस टेक देम ऑफ। तो बॉबी ने कहा कि हाँ, हम लोगों के जो वुलन स्कार्फ्स हैं वो लाल हैं, उससे हम लोग उतार लेते हैं। दे डिड, और उन्होंने अपने स्कार्फ्स को लिया। एंड देन रैन अलोंग द रेलवे स्कर्टिंग द न्यूली फॉलन मड of stones and rock and earth and bent across twisted trees. They ran at their best pace. Peter read, but the girls were not far behind. They reached the corner that hid the mound from the straight line of railway that ran half a mile without curve or corner. तो वो लोग अपने स्कार्फ को लेके उसमें डंटा लगाकर लहराते हुए उस टीले की ओर जो चट्टानों के गिरने पेड़ों के गिरने से बना था उसके बगल से दौड़ते हुए आगे की ओर बढ़े और उस जगह पर पहुँचे जहाँ से रेलवे लाइन सीधा जा रहा था, वहाँ कोई कर्व नहीं था। और उस जगह पर पहुँच के वो लोग उस झंडे को हिलाने लगे। Now we have got the scarves, said Peter. He looked at the watch again. And we have got 7 minutes. We must have flag staffs. उसके बाद उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को अब एक डंटा ले लेना चाहिए और उसमें इस झंडे को, इस स्कार्फ को लगा के आगे दिखाना चाहिए। Quickly the children cut holes in the flags and ran the stick through them. Then they stood ready to wave the red flags as soon as the train came in sight. उसके बाद उन लोगों ने स्कार्फ में छेद किया और उसमें डंटा लगा के लहराने की स्थिति में ले आए और सोचा कि जैसे ही ट्रेन नज़र में आएगा हम लोग झंडा उन लोगों को दिखाएंगे। बॉबी began to feel sick with suspense, और घबराहट से, आश्चर्य से बॉबी अपने आप को बीमार जैसा महसूस कर रही थी। It seemed to her that they had been standing there for hours and hours, holding the silly little red flags that no one would ever notice. The train wouldn't care. It would go rushing by them and tear round the corner and go crashing into that awful mound, and everyone would be killed. Her hands grew very cold and trembled so that she could hardly hold the flags. And then came the distant rumble and hum of the metals, and a puff of white steam soared far away along the stretch of line. उसके बाद बॉबी जो घबराहट से
अपने आप को बीमार जैसा महसूस कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहाँ वो लाल झंडे के साथ घंटों से खड़े हैं, जिस पर शायद कोई ध्यान भी नहीं देगा और ट्रेन इस पर ध्यान नहीं देगा। जो ड्राइवर हैं वो उसको नहीं ध्यान देंगे और वो तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ उस टीले से टकराएगा और काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे। ये सब विचारें आने के बाद जब उसके मन में ऐसी विचारें आने लगी तो उसका हाथ ठंडा पड़ गया, वो कांपने लगी और वो काफ़ी मुश्किल से उस फ्लैग को जो स्कार्फ बांध कर बनाया था वो पकड़ पा रही थी। तभी उन लोगों ने दूर से ट्रेन के आने की आवाज़ सुनी और धुएं को भी देखा जो ट्रेन के इंजन से निकल रही थी। "Stand firm," said Peter, "and wave like mad. As the train comes closer, step back but go on waving. Don't stand on the line, Bobby." तो पीटर ने कहा कि सीधे खड़ी रहो और पागलों की तरह इस झंडे को जो स्कार्फ बन के बनाया था उसे हिलाती रहो और जैसे जैसे ट्रेन पास आएगा अपने कदम पीछे खींचना, लेकिन कभी भी लाइन पे जाके खड़े नहीं होना और झंडा हिलाना बंद नहीं करना। उसने बॉबी से कहा। द ट्रेन केम rattling along very fast. The front of the engine looked black and enormous. Its voice was loud and harsh. उसके बाद ट्रेन काफ़ी शोर के साथ काफ़ी तेज़ी से आता चला गया। उस इंजन का जो सामने का हिस्सा था वो काला और विशालकाय नज़र आ रहा था और उसका जो आवाज़ था वो काफ़ी तेज और कानों को फाड़ देने वाला था। "Oh, stop, stop, stop," cried Bobby. No one heard her, at least Peter and Phyllis didn't. तो बॉबी चिल्लाई, अरे रुको रुको रुको, लेकिन कोई भी उसका आवाज़ नहीं सुना, खास करके पीटर और फिलिप्स भी नहीं सुन पाए। For the oncoming rush of the train covered the sound of her voice with a mountain of sound. क्योंकि इंजन से जो आवाज़ निकल रही थी वो इतनी तेज़ थी कि उसने बॉबी के आवाज़ को ढक दिया। But afterwards she used to wonder whether the engine itself had not heard her. It seemed almost as though it had, for it slackened swiftly, slackened and stopped, not 20 yards from the place where Bobby's two flags waved over the line. She saw the great black engine stop dead, but somehow she could not stop waving the flags, and when the driver and the fireman had got off the engine and Peter and Phyllis had gone to meet them and pour out their excited tale of the awful mound just round the corner, Bobby will wave the flags, but more and more feebly and jerkily. तो बॉबी चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज़ इंजन के शोर में काफ़ी दब गया था। यहाँ तक कि पीटर और फिलिस जो बगल में थे वो भी नहीं सुन पाए। लेकिन उसके बाद उसे यह आश्चर्य हुआ कि शायद इंजन खुद से उस आवाज़ को नहीं सुना होगा। ऐसा लगा कि शायद उसने सुन लिया, क्योंकि उसके बाद ट्रेन का इंजन धीरे धीरे रुकता हुआ धीमा होता हुआ पूरी तरह से रुक गया और बॉबी जो है तब भी अपने थके हाथों से झंडा हिलाती ही रही। उसके बाद इंजन से ड्राइवर और फायरमैन उतर के बॉबी और पीटर लोगों के पास पहुँचे, जहाँ पीटर ने उन्हें उस आगे जो लैंडस्लाइड हुआ था उसकी कहानी कही कि किस तरह से रेलवे लाइन पे पूरा पहाड़ बना हुआ है, दुर्घटना हो सकती है। When the station was reached and three were the heroes of an agitated meeting on the platforms. तो जब स्टेशन पहुंचा
तो वहाँ उत्तेजित जो भीड़ थी वो उन तीनों हीरो से मिलने के लिए बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे थे और वहाँ पहुँचने पर उनके तत्पर जो प्रयास किया उन लोगों ने इस दुर्घटना से बचाने के लिए, इस पर काफ़ी प्रशंसा हुई इन लोगों की। देयर कॉमन सेंस, देयर ingenuity were enough to have turned anybody's head। अब उनका जो एक तत्पर ज्ञान था कि किस तरह से उन लोगों ने तत्परता के साथ ट्रेन को किस तरह दुर्घटना से बचाएं, इसका ज्ञान प्लस उनकी जो समझ थी कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को तुरंत आसानी से सॉल्व किया जाए, किस तरह ट्रेन को दुर्घटना से बचाया जाए, इस बात को जानकर सब ने प्रशंसा से अपने सर झुका लिए। फिलिस enjoyed herself thoroughly। तो फिलिस ने इस पूरे घटना का जो वहाँ प्रशंसा किया जा रहा था इन लोगों का, इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय किया। She had never been a real heroine before, क्योंकि इससे पहले उसके साथ ऐसा कोई घटना नहीं घटा था। एंड द फीलिंग वॉज डिलीशियस, और यहाँ पर जो प्रशंसा हो रही थी उससे उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। पीटर को भी ये चीज़ अच्छा लगा, लेकिन बॉबी को ये कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो इतनी थक गई थी, इतनी घबराई हुई थी कि अब वो अपने घर जाना चाहती थी। ओह कम अवे, आई वॉन्ट टू गो होम, सी सेड। तो उसने अपने भाइयों और बहनों से कहा कि आओ चलो अब हम लोग घर चलते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से उसने इस काम को प्रशंसा पाने के लिए नहीं किया था, उसने एक नैतिक दायित्व समझते हुए लोगों की जीवन बचाने के लिए किया था। इसलिए ये प्रशंसा जो वहाँ मिल रहा था इसे उसके छोटे भाई बहनों ने तो काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन बॉबी को ये प्रशंसा पाना उतना अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो चूँकि बड़ी भी थी और समझदार थी, तो वो काफ़ी प्रयास भी की थी, काफ़ी थक भी गई थी, फिर भी उसने अपने पूरे हिम्मत के साथ उस ट्रेन को बचाने का प्रयास किया था। इसलिए घबराहट और थकान की वजह से वो अब घर जाना चाहती थी। तो ये आपका कहानी था कि किस तरह तीन बच्चों ने अपनी तत्परता से, अपनी बुद्धि से उस ट्रेन को एक भयानक दुर्घटना से बचाया और लाखों हजारों लोगों की जीवन को बचाया। इसका क्वेश्चन आंसर मैं दूसरे वीडियो में आपको दे रहा हूँ। इसे आप ध्यान से अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।